एडवोकेट अर्पिता शुक्ला, वेलकम योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे सीपीसी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द कोर्ट अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 ऑफ सीपीसी कैन रिफर द डिस्प्यूट ऑफ फॉर ए आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन, बी कॉन्सिलेशन और मीडिएशन, सी मीडिएशन और लोक अदालत, डी आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन लोक अदालत और मीडिएशन। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट का डी। सेकंड देखेंगे, द कोर्ट कैन अवॉर्ड कंपनसेशन अगेंस्ट प्लांटिफ अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीपीसी नॉट एक्सीडिंग A rupees 10,000 or the limits of its pecuniary jurisdiction whichever is less, B rupees 10,000 or the limits of its pecuniary jurisdiction whichever is more, C 50,000 and this amount not exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction, D rupees 50,000 and this amount to exceed the limits of its pecuniary jurisdiction whichever is more। तो इसका आंसर सी है। थर्ड देखेंगे, अंडर सेक्शन 100A ऑफ सीपीसी वेयर एनी अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेट डिक्री और ऑर्डर इज हियर्ड एंड डिसाइडेड बाय ए सिंगल जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ए नो फर्दर अपील शैल लाई फ्रॉम द जजमेंट एंड डिक्री ऑफ सच सिंगल जज, बी फर्दर अपील शैल लाई अंडर द लेटर्स पेटेंट्स फॉर द हाई कोर्ट, सी फर्दर अपील शैल लाई विद द लीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डी फर्दर अपील शैल लाई बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसका आंसर ए है, नो फर्दर अपील शैल लाई फ्रॉम द जजमेंट एंड डिक्री ऑफ सच सिंगल जज। फोर्थ देखेंगे, सेकेंड अपील शेल नॉट लाई फ्रॉम एनी डिक्री एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 102 ऑफ सीपीसी व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10,000, बी 25,000, सी 50,000, डी 1 लाख। तो इसका आंसर है बी 25,000। फिफ्थ देखेंगे, अंडर सेक्शन 39 सब सेक्शन 4 ऑफ सीपीसी द कोर्ट पासिंग द डिक्री इज ऑथराइज टू एग्जीक्यूट सच डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन आउटसाइड लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स jurisdiction, be authorized to execute such decree against any property outside the local limits of its jurisdiction, C either A or B, D neither A nor B। तो इसका आंसर है डी neither A nor B। सिक्स देखेंगे, ए प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 शेल नॉट बी वॉइड इफ made in pursuance of any contract for such transfer delivery entered into and registered before the attachment, be made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into and registered after the attachment, see made in pursuance of any contract for such transfer delivery entered in it into before the attachment but registered after the attachment, either A, B or C। तो इसका आंसर है ए, बिफोर अटैचमेंट। ठीक है, सेवन देखेंगे, in case of a cause of action arising at a place where the corporation has a subordinate office, the corporation is deemed to carry on business, A its principal office in India, B its subordinate office where the cause of action did arise, C both A and B, D either A or B। तो इसका आंसर है बोथ A and B। एट्थ देखेंगे, in every plaint under section 26 of CPC fact should be proved by oral evidence, B affidavit, C document, D oral evidence as well as document। इसका आंसर B है, एट्थ का B affidavit के थ्रू। नाइन्थ देखेंगे, according to section 27 of CPC, summons to the defendant to be served on such date not beyond A 30 days from the date of institution of suit, B 60 days from the date of institution of suit, C 45 days from the date of institution of suit and D 90 days from the date of institution of suit। तो इसका आंसर A है, 30 days from the date of institution of suit। देखते हैं, देखेंगे, the court may impose a fine for default upon a person required to give evidence or to produce documents directed under section 30 subsection B of CPC and such fine as per section 32 subsection C not to be exceed A rupees 500, B 1,000, C 5,000, D 10,000। तो इसका आंसर सी है 5,000 रुपीज़। 11th देखेंगे, अकॉर्डिंग अ सूट टू set aside a decree on the ground of lack of territorial jurisdiction is barred, A under section 21 of CPC, B section 21A of CPC, C section 22 of CPC, D 23 of CPC। तो इसका आंसर है B 21A of CPC। 12 देखेंगे, parties by their consent agreement, A can confer jurisdiction on a court where there is none in law, B can oust the jurisdiction of the court where there is one in law, C can oust the jurisdiction of one of the courts where there are two courts simultaneously having jurisdiction in law, D all of the above। तो इसका आंसर है C can oust the jurisdiction of one of the courts when there are two courts simultaneously having jurisdiction in law। 13 देखते हैं, section 20 of CPC does not apply to आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, बी सिविल प्रोसीडिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर है ए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। 14 देखेंगे, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू इंस्टीट्यूट द सूट रिलेटिंग टू डिस्प्यूट इन अ पर्टिकुलर कोर्ट, ए डज नॉट हाउस द जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर कोर्ट, बी में ऑपरेट एज एस्टोपल बिटवीन द पार्टीज, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी।
15 देखेंगे, इन केस ऑफ द कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट शैल बी गवर्न बाय इन लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टर्स, बी लेक्स लोकी सॉल्यूशंस, सी लेस सीटस, डी रूल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस दैट इज इंटेंशन ऑफ पार्टीज। तो इसका आंसर डी है, रूल ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस दैट इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। 16 देखेंगे, अ कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी इज डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट its principal office in India, be its subordinate office in India, C both A and B, D either A और B। तो इसका आंसर है its principal office in India, A। 17th देखते हैं, a suit relating to partnership dissolved in a foreign country can be filed at a place in a foreign country, B where the parties to the suit reside in India, C both A and B, D all over India। तो इसका आंसर B है, where the parties to the suit reside in India। 18 देखेंगे, ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, ए कैन ओनली बी टेकन बाय बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, सी कैन बी टेकन बी कैन बी टेकन बिफोर द एपेलेट कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, सी ऑप्शन कैन बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ रिवीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ए है, कैन ओनली बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। 19 देखेंगे, इन केस वेयर देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट अ सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन हुज लोकल jurisdiction, A each of the defendant at the time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally work for gain, B any of the defendant at the time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally work for gain and the defendants not so residing etc accuses, both A and B and C, D only A and not B। तो इसका आंसर है both A and B are correct। 20 देखेंगे, अ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ वन कोर्ट एंड द डिफेंडेड रिजाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ अनदर कोर्ट। ऑप्शन ए कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द रॉन्ग हैज बीन कमिटेड, बी कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट रिजाइड, सी इधर ए और बी एट द ऑप्शन ऑफ प्लांटिव, डी एनीवेयर इन इंडिया। तो इसका आंसर है ए, इधर ए और बी। 21 देखेंगे, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो ये हमारा सेक्शन 17 में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 देखेंगे, ऑन द ग्राउंड ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी, ए ओनली जजमेंट इन पर्सोनम कैन बी चैलेंज, बी ओनली जजमेंट इन रैम कैन बी चैलेंज, सी बोथ जजमेंट इन पर्सोनम एंड जजमेंट इन रैम कैन बी चैलेंज, डी नीदर इज ए जजमेंट इन पर्सोनम नॉट द जजमेंट इन रैम कैन बी चैलेंज। तो इसका आंसर है बोथ जजमेंट इन पर्सोनम एंड जजमेंट इन रैम कैन बी चैलेंज, 22 का सी। 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स्ड और समन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो हमारा ये डील करता है ऑर्डर 5 रूल 2 से, कॉपी एनेक्स टू समन्स। 24 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल इन द सीपीसी। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये हमारा डील करता है ऑर्डर 7 रूल 3 से। 25 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रोसीजर व्हेन द पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट इन द सीपीसी। तो हमारा ये सेक्शन ये डील करता है हमारा ऑर्डर 8 रूल 10 से। किससे? 8 रूल 10 से, जहाँ पे पार्टी फेल हो जाती है रिटर्न स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने में। 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन इन द सीपीसी। ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन हमारा डील करता है ऑर्डर 11 रूल 18 से। 27 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट हमारा डील करता है ऑर्डर 19 रूल 11 से। 28 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद इंक्वायरी एज टू द वेदर एप्लीकेंट इज एन इंडिजेंट पर्सन टू द सीपीसी। हमारा इंक्वायरी वेदर एप्लीकेंट इज एन इंडिजेंट पर्सन, तो ये हमारा ऑर्डर 44 का रूल 3 से डील करता है। 29 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स रूल एज टू कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। ए कॉन्करेंट एज टू पेक्यूनरी लिमिट्स एंड द सब्जेक्ट मैटर, सेकंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द फॉर्मर सूट टू बी डिटरमाइंड एज ऑन द डेट ऑफ द फॉर्मर सूट एंड नॉट एज ऑन द डेट ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट, थर्ड कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रायल कोर्ट डिटर्मिनेशन, फोर्थ कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट व्हेन देयर इज अ कोर्ट विद प्रेफरेंशियल जुरिस्डिक्शन, फिफ्थ बोथ ऑफ द सूट्स आर इन रेवेन्यू कोड बट अपील्स लाई टू डिफरेंट अथॉरिटीज। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। 30 देखते हैं, A decision in a suit may operate as res judicata against persons not expressly named as party to the suit by virtue of explanation. A. Section 11 का explanation 2, B. Section 11 का explanation 4, C. Section 11 का 6,
डी सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 8, तो इसका आंसर सी है सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 6। 32 देखेंगे, रेस जुडिकेटा डज नॉट ऑपरेट। रेस जुडिकेटा हमारा प्रोफर्मा डिफेंडेंट के अगेंस्ट नहीं अप्लाई होता, ठीक है, 32 का सी। 33 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेस जुडिकेटा इज नॉट एप्लीकेबल। ए कंसेंट कॉम्प्रोमाइज डिक्री, बी डिसमिसाल इन डिफॉल्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। 34 देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज ए मैंडेटरी, बी डायरेक्टरी, सी डिस्क्रिशनरी, डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ए मैंडेटरी। 35 देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए एक्स पार्टे डिक्री विल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, बी रिट पिटिशन डिसमिस्ड ऑन मेरिट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, सी रिट पिटिशन डिसमिस्ड ऑन लिमिनी ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, बोथ, इसका आंसर डी बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर है रिट पिटिशन डिसमिस्ड इन लिमिनी ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, तो 35 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 36 देखेंगे, इन अ सूट वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज द सूट इज लाइबल टू बी ए स्टेट, बी डिसमिस, मे बी स्टेट बाय एंड मे बी डिसमिस्ड, एंड डी बोथ ए एंड बी, ए एंड सी, तो इसका आंसर है डिसमिस्ड। 37 देखेंगे, अ डिसीजन और फाइंडिंग गिवन बाय अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल विदाउट जुरिस्डिक्शन, ए कैन ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, बी कैन नॉट बी ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, सी कैन ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, डी में ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा और मे नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, तो इसका आंसर बी है, कैन नॉट बी ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। 38 देखते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी, ए ओनली अ जजमेंट इन पर्सोनम कैन बी चैलेंज, बी ओनली अ जजमेंट इन रैम कैन बी चैलेंज, सी बोथ जजमेंट इन पर्सोनम एंड जजमेंट in RAM can be challenged, D neither a judgment in personam nor judgment in RAM can be challenged, तो इसका आंसर सी है, both judgment in personam and judgment in RAM can be challenged। 39 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, a person who institute a suit in foreign court and claims a decree in personam after the judgment is pronounced against him, A can always challenge the judgment on the ground of competency, B can never challenge the judgment on the ground of competency, C can challenge the judgment on the ground of competency under certain circumstances, D either A और C, तो इसका आंसर B है, can never challenge the judgment on the ground of competency। 40 देखेंगे, place of institution of suit in respect of immovable property situated within the jurisdiction of different courts have been provided, A under section 17, B under section 18, C under section 19, D under section 20, तो इसका आंसर है A है, under section 17। 41 देखेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 39 ऑफ सीपीसी द कोर्ट इज ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू इट सच कोर्ट वुड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट, ए इन विच सच डिग्री वाज पास, बी टू विच सच डिग्री हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कोर्ट, सी सच डिग्री वाज पेंडिंग, डी नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ए है, इन which such decree was passed। 42 the rule of retiable distribution of proceed of execution sale amongst decree order is contained in, रूल ऑफ रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड ऑफ एग्जीक्यूशन सेल अमंगस्ट डिक्री होल्डर हमारा कंटेन करता है सेक्शन 73 ऑफ सीपीसी में। 43 देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सोमा सुंदरम मिल प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 73 ऑफ सीपीसी द डेट्स ड्यू टू द स्टेट A stand on equal footing with all other debts, B are to be paid only after payment of all other debts, C are entitled to priority over all other debts, and either A और B, तो इसका आंसर A है, C है, are entitled to priority over all other debts। 44 देखेंगे, अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड, प्लेंट हमारा ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट हो सकता है, तो 44 का सी। 45 देखेंगे, द एक्सपेंसेस फॉर द सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट हैव टू बी बॉर्न अंडर 5 रूल 9 सब सेक्शन 3 ऑफ सीपीसी sub rule 3 of CPC by if the plaintiff, the court, the defendant, D partly by the plaintiff and partly by the defendant, तो इसका आंसर A है, the plaintiff। 46 देखेंगे, the court can reject the plaint under order 7 rule 11 sub rule E of the CPC if it is not filed in A triplicate, B duplicate, C quadruplicate, D only C and not A और B, तो इसका आंसर है डुप्लीकेट, 46 का B। 47 देखेंगे, ऑर्डर 8 रूल 1 मैंडेट दैट द डिफेंडेंट शेल फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन अ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, बी 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, सी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, डी 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, तो इसका आंसर सी है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। 48 देखेंगे, द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ CPC आर 8 डायरेक्टरी बीइंग प्रोसीजरल, बी मैंडेटरी थ्रू
दो प्रोसीजरल, सी ऑप्शनल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, डी डिस्क्रिशनरी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो इसका आंसर ए है, डायरेक्टरी बीइंग प्रोसीजरल। 49 देखेंगे, अ प्रेयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 days प्रिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ CPC फाइलिंग the written statement is to be A granted just as a matter of routine, B granted ordinarily, C granted on sufficient cause being shown by the defendant, D only granted only for exceptional circumstances occasioned by reason beyond the control of the defendant। तो इसका आंसर डी है, granted only for exceptional circumstances against the reasonable beyond the control of defendant। 50 देखेंगे, a prayer for extension of time beyond the period of 90 days for filing the written statement, A can be oral, B has to be in written, C can be either oral or in writing, D neither A nor B as the time cannot be extended beyond 90 days। तो इसका आंसर है हैज़ टू बी इन राइटिंग। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।